یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 11 اگست 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: روح، سنہری متن، زبور۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ اے خداوند، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ درسی واز بائبل میں سے ایوب۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ زبور۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا، تاکہ خداوند کے جلال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ یسایہ۔ ہماری عیدگاہ سیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ ہے جو ہلایا نہ جائے گا، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی ڈوریوں میں سے ایک بھی نہ توڑی جائے گی۔ لوقا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ لوقا۔ تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے، اور اس نے ان سے کہا کہ آؤ جھیل کے پار چلیں۔ پھر وہ اسینیوں کے علاقہ میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے۔ جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں، اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے، اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا، اس لیے کہ اس نے ان کو اکثر پکڑا تھا، اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا، اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی۔ یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھیں، اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں اتھاہ گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ وہاں پہاڑوں پر سوروں کا ایک غول چر رہا تھا، انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے، اس نے انہیں جانے دیا۔
اور بدरूहें उस आदमी में से निकलकर सूरों के अंदर गईं, और कौल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे के देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को, जिसमें से बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासीनियों के गिरदोनवा के सब लोगों ने उससे दरखास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया। लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौटकर लोगों को बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। रोमियो। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ। तमैथियस। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत और तरबियत की रूह दी है। अमाल। पौलुस ने अरियुपगस में खड़े होकर कहा, ए इतने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को बनाया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाएं, हरचंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। रोमियो। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सवाल, हस्ती का साइंसी बयान क्या है? जवाब, मादे में कोई जिंदगी, सच्चाई, जहानत और ना ही मवाद पाया जाता है। क्योंकि खुदा हाकिम कुल है, इसलिए सब कुछ लामुतनाही अकल और उसका लामुतनाही इजहार है। रूह ला फानी सच्चाई है, मादा फानी गलती है। रूह अब्दी और हकीकी है, मादा गैर हकीकी और आर्जी है। रूह खुदा है और इंसान उसकी सूरत और शबी, इसलिए इंसान मादी नहीं बल्कि वो रूहानी है। अलूहियत के लिए मादर पिदर नाम है, जो उसकी रूहानी मखलूक के साथ उसके शफीक ताल्लुक की तरफ इशारा करता है, जैसा कि रसूल ने इन अल्फाज में यह जाहिर किया जिन्हें एक बेहतरीन शायर की मंजूरी से लिया गया है, इसलिए कि हम भी उसकी औलाद हैं। लामहदूद जिंदगी और मोहब्बत में कोई बीमारी, गुनाह और ना मौत होती है, और सहाइफ वाज़ह करते हैं कि हम लामहदूद खुदा में जीते, चलते फिरते और मौजूद हैं। गलती की जोरदार गूंज, स्याही और अफरा तफरी से हटकर सच्चाई की आवाज अभी भी बुलाती है, आदम तू कहाँ है? शाऊर तू कहाँ है? क्या तुम इस यकीन में जिंदा रहते हो कि अक्ल मादे में है और कि बदी अक्ल है, या क्या तुम इस जिंदा ईमान में रहते हो
کہ यहाँ माँ सिवाय एक खुदा के और कोई है ना हो सकता है और उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हो। जब तक ये सबक नहीं सीख लिया जाता कि खुदा ही इंसान पर हुकूमत करने वाली वाहिद अक्ल है, फ़ानी अक़ीदा खौफज़दा ही रहेगा, जैसा कि ये इब्तिदा में था, और ये इस तलब से छुपा रहेगा कि तू कहाँ है। ये रूबज़दा मांग कि ए आदम तू कहाँ है। सर, दिल, पेट, खून, अंतड़ियों वगैरह की बारियाबी से पूरी होती है कि देख मैं यहाँ हूँ, बदन में खुशी और ज़िंदगी को तलाश करता हुआ, मगर सिर्फ एक भरम, झूठे दामों, झूठी खुशी, दर्द, गुनाह, बीमारी और मौत की मिलावट को ही पाते हुए। जिस्म बदन के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जितनी अच्छाई बुराई के साथ मुवाफ़क़त रख सकती है, जिस्म और रूह एक दूसरे के साथ उतने मुत्तहिद नहीं हो सकते। मुंजमद या आधा रास्ता इख्तियार करना या रूह और मादे से सच्चाई और गलती से मुसावी तौर पर काम करने की तवक्को करना अक्लमंदी नहीं, मगर एक रास्ता है, यानी खुदा और उसका ख्याल, जो रूहानी हस्ती की जानब रहनुमाई देता है। हम झूठी बुनियादों पर महफूज तामीरात नहीं कर सकते। सच्चाई एक नई मखलूक बनाती है, जिसमें पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं और सब चीज़ें नई हो जाती हैं। जज्बात, खुदगर्जी, नफ़रत, खौफ, हर सनसनीखेज़ी रूहानियत को तस्लीम करते हैं और हस्ती की अफराद खुदा यानी अच्छाई की तरफ है। आइए हम इस अक़ीदे से पीछा छुड़ाएं कि इंसान खुदा से अलग है और सिर्फ इलाही असूल, ज़िंदगी और मोहब्बत की फरमाबरदारी करें। यहाँ पूरी हकीकी रूहानी तरक्की के लिए रवानगी का बड़ा नुक्ता आता है। साइंस में खुदा और इंसान, इलाही असूल और ख्याल के ताल्लुकात लाज़वाल हैं, और साइंस भूल चूक जानती है नाहमाही की जानब वापसी, लेकिन ये इलाही तरतीब या रूहानी कानून रखती है, जिसमें खुदा और जो कुछ वो खल्क करता है कामिल और अबदी हैं, जो उसकी पूरी तारीख में गैर मुतगय्यर रहे हैं। साइंस में तमाम तर हस्ती अबदी, रूहानी, कामिल और हर अमल में हम-आहंग है। एक कामिल नमूने को आपके ख्यालात में पेश होने दें, बजाय इसके बाद इखलाक मुखालफ के। ख्यालात की रूहानियत आपके शऊर को रोशन करती और उसमें इलाही अक्ल यानी ज़िंदगी लाती है, ना कि मौत। ये बात इंदराज में है कि एक बार यसू ने एक बीमारी का नाम पूछा, ऐसी बीमारी जिसे आज के जदीद दौर में डिमेंशिया कहा जाता है। शैतान या बदरू ने जवाब दिया कि उसका नाम लश्कर था। वहीं यसू ने उस बदरू को बाहर निकाला और पागल शख्स तब्दील हो गया और वो तंदुरुस्त हो गया। कलाम ये जाहिर करता हुआ दिखाई देता है कि यसू शैतान को खुद जाहिर होने और फिर नेस्त होने का मौजब बना। सारी बीमारी की मुयस्सर वजह और बुनियाद खौफ, लाइल्मी या गुनाह है। बीमारी हमेशा गलत फहम की बदौलत तरगीब पाती है, जो शाऊरी तौर पर मंजूर की जाती है, ना कि तबाह की जाती है। हमेशा मरीजों के खौफ को दूर करके इलाज का आगाज करें। अगर आप मुकम्मल तौर पर खौफ को दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका मरीज सेहतयाब हो जाएगा। पागलपन का इलाज खास तौर पर बहुत दिलचस्प है, ताहम मामले में रुकावट डालते हुए ये दूसरी बीमारियों की निस्बत ज़्यादा आसानी से सच्चाई के सेहतबख्श काम के लिए राज़ी हो जाता है, जो गलती की जवाबी कार्रवाई होता है। पागलपन का इलाज करने के लिए जिन दलाइल को इस्तेमाल किया जाता है, ये वही हैं जो दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी वो अनहोनी जिसे मादा, ज़हन काबू कर सकता है या जो अक्ल को बेतरतीब कर सकता है। ये दुख उठा सकता है या दुखों का मौजब बन सकता है। इसके साथ साथ ये हकीकत कि सच्चाई और मोहब्बत एक सेहतमंद हालत कायम करती है, फ़ानी अक्ल या मरीज़ के ख्यालात की रहनुमाई करती और उस पर हुक्मरानी करती है और सब गलतियों को नेस्त करती है, खा इसे डिमेंशिया, नफ़रत या कोई भी दूसरा मसला कहा जा सकता है। जब मादे पर अक़ीदे को फ़तह कर लिया जाता है, तो शाऊर बेहतर बदन तश्कील देता है। रूहानी फ़हम के वसीले मादी अक़ीदे की तसहीह करें, तो आपकी रूह आपको नया बनाएगी।
माँ सिवाय खुदा को रंजीदा करने के आप कभी खौफजदा नहीं होंगे, और आप ये कभी यकीन नहीं रखेंगे कि दिल या आपके बदन का कोई भी हिस्सा आपको तबाह कर सकता है। बशर को खुदा की जानब राग़िब होना चाहिए, तो उनके मकासद और एहसासात रूहानी होंगे। उन्हें हस्ती की तशरीहात को वसत के करीब तर लाना चाहिए और लामुतनाही का मुनासिब इदराक पाना चाहिए, ताकि गुनाह और फानियत को ख़त्म किया जा सके। हस्ती का ये साइंसी फ़हम रूह के लिए मादे को तर्क करते हुए किसी वसीला के बगैर अलूहियत में इंसान के सूखेपन और उसकी शनाख्त की गुमशुदगी की तजवीज़ देता है, लेकिन इंसान पर एक वसी तर इनफरादियत निछावर करता है, यानी अमाल और ख्यालात का एक बड़ा दायरा, वसी मोहब्बत और एक बुलंद और मज़ीद मुस्तकिल अमन अता करता है। अक्ल जिस्मानी हवास का मालिक है और बीमारी, गुनाह और मौत को फतह कर सकती है। इस खुदादाद इख्तियार की मशक करें, अपने बदन की मलकियत रखें और इसके एहसास और अमल पर हुक्मरानी करें। रूह की क़ुव्वत में बेदार हों और वो सब जो भलाई जैसा नहीं उसे मुस्तरद कर दें। खुदा ने इंसान को इस काबिल बनाया है और कोई भी चीज़ उस काबिल और क़ुव्वत को बिगाड़ नहीं सकती जो इलाही तौर पर इंसान को अता की गई है। रूहानी ज़िंदगी और बरकत ही वाहिद सबूत हैं जिनके वसीला हम हकीकी वजूदियत को पहचान सकते और नाकाबिले बयान अमन को महसूस करते हैं, जो सब जज़ब करने वाली रूहानी मोहब्बत से निकलता है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता जानते हैं और इंसान की रूहानी हस्ती को पहचानते हैं, हम खुदा की तख्लीक को समझें और देखेंगे। सारा जलाल ज़मीन और आसमान और इंसान के लिए। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।